Hello friends, today we will start new test series of business study. Business study. In business study we will complete today Consumer Protection Act 2019 which is latest. From this topic we will see 2-3 questions in the paper. Definitely. In today test series we will do near about 30 plus questions in it. If you want PDF, if you want PDFs of Consumer Protection Act, Consumer Protection Act 2019, then you can text या WhatsApp on 7003660095. You will get this PDF only in rupees 21, which is nominal charges for all. In this, you will get notes plus MCQ questions of complete Consumer Protection Act 2019. In this video, we will do some MCQs related to Consumer Protection Act 2019. If you want PDF, you can text on this WhatsApp number and you can take it in only rupees 21. Notes and PDF both. These are the nominal charges for everyone who can easily afford. Let's start. These are the basic points. In notes, we have mentioned points on Consumer Protection Act 2019. When was the Consumer Protection Act 2019 enacted? The Consumer Protection Act 2019 was notified on 9th August 2019. However, it comes effect. कब से ये लागू हुआ गया है? जुलाई 20th 2020. कब गया था ये? 2019 में. कब? 19 अगस्त 9 अगस्त 2019 में. What are the main features of Consumer Protection Act? These we have mentioned in these notes. Who is the consumers? Who is not a consumers? These points are mentioned in this notes. What consumer rights are guaranteed under Consumer Protection Act 2019? Consumers को कौन कौन से राइट मिले हुए हैं? राइट ऑफ सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस. 1 2 3 4 5 6 7 6 rights are provided in Consumer Protection Act 2019 for the consumers. अब बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, व्हाट आर द गुड्स. दिस वी विल शो. हु कैन मेक कंप्लेन, कौन कंप्लेंट कर सकता है, इसके भी पॉइंट्स मेंशन है इन दिस नोट्स में. दीज आर द वन लाइनर नोट्स विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. क्लियर है बात? मैं आपको पीडीएफ का थोड़ा सा हल्का सा क्या दिखा दे रहा हूं, आपको नोट्स दिखा दे रहा हूं कैसे आप लोगों को नोट्स बनाए गए हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है हमारा? 2019 में. क्यों आया है? गिव क्विक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रेम्यूनरेशन टू कंज्यूमर कंप्लेंट्स, ताकि कंज्यूमर के जो कंप्लेंट्स हैं उस पर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्विक एक्शंस किया जाए, मतलब क्विक उनको सुविधाएं या जो भी उनके साथ गलत हुआ है उन सब का समाधान किया जाए. तो these are the points which I have mentioned in Consumer Protection Act 2019. By you can get these notes by only in 21 rupees, which you will complete
fully complete, not complete, fully complete with MCQ questions, only and only 21 rupees. These we will do MCQ. First, when was Consumer Protection Act 2009 ratified? Consumer Protection Act 2019 कब रेटिफाई हुआ था? ये आया तो हमें पता है कब आया था, जुलाई 20th। कब आया था? जुलाई 2020 में। लेकिन बन कब गया था? ये बन गया था हमारा 9 अगस्त 2019, 7 अगस्त 2019, अगस्त 9 2018, अगस्त 10 2019। तो ये कब बन गया था? ये बन गया था हमारा 9 अगस्त 2019। 1 is the right answer. Next, which consumer rights is not guaranteed under the Consumer Protection Act 2019? कौन सा राइट ऐसा है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में नहीं गिवन है? राइट टू चूज, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी सीक रिड्रेसल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Right to exploitation is the right answer, which is not given guarantee under the Consumer Protection Act 2019. Next, who can make complaint under this act? इस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 में, इसमें कौन कंप्लेंट कर सकता है? कंज्यूमर, थर्ड पर्सन, एलन, नन ऑफ दिस। मतलब कि कंज्यूमर, मतलब कि कौन इस पे कंप्लेंट कर सकता है, कौन इसमें कंप्लेंट कर सकता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कंज्यूमर। क्या होगा? राइट आंसर क्या है इसका? कंज्यूमर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल एजेंसीज? इसमें से कौन कौन सी कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल एजेंसीज है? मतलब कि कौन कौन सी एजेंसीज है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गिवन है और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉड होने से? तो कौन कौन सी एजेंसी अवेलेबल है कंज्यूमर्स के लिए? पंचायत कमीशन, म्युनिसिपल कमीशन, स्टेट कमीशन, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज स्टेट कमीशन। हमें पता है कि कौन कौन सी एजेंसीज अवेलेबल है। फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। District Commission, State Commission, National Commission, these three agencies are available for the consumer under the Consumer Protection Act 2019। क्लियर है बात? नेक्स्ट अब देखो, व्हाट इज द फिजिकल जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन? जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें कितने तक का, अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है, उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो कितने अमाउंट तक जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो कंप्लेन कर सकता है? तो अप टू 1 करोड़, अप टू 5 करोड़, अप टू 10 करोड़, नन ऑफ दी अबव। अकॉर्डिंग टू 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने अमाउंट तक हम कंप्लेंट कर सकते हैं? द राइट आंसर इज अप टू 1 करोड़। कितने करोड़ तक? 1 करोड़ तक हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ टू 10 करोड़, और नेशनल में अबाउ 10 करोड़। वी कैन डू कंप्लेन अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट। डिस्ट्रिक्ट में अप टू 1 करोड़, स्टेट में 1 करोड़ टू 10 करोड़, नेशनल में अबाउट 10 करोड़। इसके बाद भी अगर कंज्यूमर उस डिसीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं है, नेशनल कमीशन, देखो अगर 1 करोड़ का उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो वो पहले कंप्लेंट किस में करेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर उसके डिसीजन से भी वो संतुष्ट नहीं है, एग्री नहीं है, तो वो किस में कंप्लेंट कर सकता है? मतलब कि अपनी कंप्लेंट फॉरवर्ड करवा सकता है किसमें? स्टेट कमीशन में। अगर वहां भी उसको संतुष्टि नहीं मिली है, देन he can go to national commission. After that he is not satisfied, then
he can go to Supreme Court. Where he will go? Supreme Court. That decision will be the final decision. और उस चीज पे कंज्यूमर को क्या होना पड़ेगा? सेटिस्फाई होना पड़ेगा, उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अब आप हाथ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, वेयर कैन द कंप्लेंट बी फिल्ड? जो कंप्लेंट है वहां मतलब कहां पे फिल की जाएगी? सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम। तो कहां पे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या कंप्लेंट रेज की जाएगी? कंप्लेंट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द लोकल लिमिट ऑफ। क्लियर है बात? नेक्स्ट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी? सेंट्रल अथॉरिटी को क्या क्या पावर्स है? टू प्रमोट द राइट, टू प्रोटेक्ट द राइट, टू एनफोर्स द राइट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज द ऑल ऑफ द अदर। जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको क्या क्या पावर्स है? राइट्स को प्रमोट करने की, बचाने की और एनफोर्स द राइट्स। दीज थ्री पावर्स हैव गिवन टू द सेंट्रल अथॉरिटी। नेक्स्ट, हु हेड्स द सेंट्रल अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन विंग? जो सेंट्रल अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन विंग है उसका हेड कौन होता है? पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, डायरेक्टर जनरल, नन ऑफ द अबव। Right answer is that Director General is the head of the Central Authority Investigation Wing. Next, does Central Authority have Chief Commissioner? Yes, no, maybe. जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसके पास चीफ कमिश्नर होता है या नहीं होता अथॉरिटी? यस, नो, मे बी। यस, आंसर इज द yes. Just a central authority shall consist a chief commissioner and several other commissioners. Next, who elects chief commissioner and other commissioners? जो इसमें कमिश्नर होता है और जो उसके साथ और मेंबर्स होते हैं जिसको भी कमिश्नर्स बोले जाते हैं, उनको इलेक्ट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर। द राइट आंसर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट elects the chief commissioner and other commissioner. Next, does the central authority have suo motu powers? क्या जो सेंट्रल अथॉरिटी है उनके पास suo motu powers है? Yes, no, maybe. Fourth answer, none of the above. Fourth option. Right answer is the yes. जो सेंट्रल अथॉरिटी है उनके पास suo motu powers अवेलेबल होती है, they can use. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज द सेंट्रल अथॉरिटी हैव पावर टू फाइल कंप्लेंट? जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उनके पास पावर होती है कंप्लेंट करने की? नो, यस, मे बी। फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द राइट आंसर? यस, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उनके पास राइट्स होती है, पावर्स होते हैं, राइट्स नहीं पावर होते हैं टू फाइल ए कंप्लेंट। ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर? ऐसा कौन सा ग्राउंड है जिस पे कंज्यूमर है वो क्लेम कंपनसेट नहीं कर सकता? किससे? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से। ये केवीएस में आया था 2017 में। This is the most important question. On what ground you cannot claim compensation from the product manufacturer? Manufacturing defect, defect in design, deviation from specification, damaged by consumer. तो और सबसे इजी क्वेश्चन था ये, आपको देखने से पता चल रहा है अगर किसी कंज्यूमर ने उसको डैमेज कर दिया है तो उस केस पे वो कंपनसेट उसको नहीं मिलेगा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डैमेज्ड बाय द
consumer. Does the consumer need an advocate to represent his case in commission? Yes, maybe, no, none of the above. The right answer is the no. कंज्यूमर को जरूरी नहीं है कि वो एडवोकेट उस केस को रिप्रेजेंट करे. नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट? अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो कितने टाइम पीरियड में उसको कंप्लेन फाइल करनी होती है कंज्यूमर को? विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर? आंसर इज द विद इन 2 ईयर he can file the complaint. नेक्स्ट है हमारा, इज देयर एनी फी फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट विद द कमीशन? इज देयर एनी फी? अगर क्या फी लगती है फाइल को कंप्लेंट करने में विद द कमीशन? यस, मे बी, नो, नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज द यस. क्या फी लगती है जब हम कंप्लेंट फाइल करते हैं कमीशन के साथ? वो फी है डिमांड से भी डिमांड ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जाता है, डिमांड ड्राफ्ट से उसको क्या दिया जाता है? फीस जमा की जाती है. उसकी फी कैसे डिपॉजिट की जाती है? डिमांड ड्राफ्ट से. नेक्स्ट, हाउ मच चेंज इन अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड फॉर फाइलिंग एन अपील? जो अपील करने के लिए कितने परसेंट अमाउंट डिपॉजिट की जाती है? 10%, 25%, 30%, 50%? आंसर इज द 50%. For appealing before the state commission and national commission, 50% of the total award amount was passed by the lower court. Next, in an e-commerce website including in consumer protection act, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन है. क्या और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ई कॉमर्स वेबसाइट इंक्लूड है या नहीं है? जो हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं उसमें क्या चीज कंज्यूमर के साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो कंप्लेन करने के लिए अवेलेबल है या नहीं है? यस, नो, मे बी. द राइट आंसर इज यस. भैया आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट या अदर ई कॉमर्स साइट से आप क्या मंगाते हो? सामान मंगाते हो. अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तब भी आप क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हार्म इन दिस एक्ट रेफर्स, जो नुकसान हुआ है वो किसको रेफर करता है? डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी अदर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, पर्सनल इंजरी, इलनेस और डेथ, मेंटल एजेंसी, इमोशनल डिस्ट्रेस अटेंडेंट टू पर्सनल इंजरी और डिजीजेस और डैमेज ऑल द प्रॉपर्टी, या ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कोई भी डैमेज होता है तो वो क्या कहलाता है? हार्म कहलाता है. कैन आई can I claim compensation if the product itself is damaged? No, yes, maybe और none of the above. सबसे इजी क्वेश्चन आज का. नो. इसका आंसर क्या होगा? नो. अगर आपसे ही वो डैमेज हुआ है तो अब आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो? देन यू कैन नॉट फाइल कंप्लेन अगेंस्ट द सेलर या प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर. नेक्स्ट देखो, राइट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, rights of consumer protection rights of consumer are protected under consumer protection act 1986, 1990, 1982, 1991. भाई अगर इसमें ऑप्शन होता 19 2019 तो वो आंसर राइट होता है. अगर इस ऑप्शन में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इस ऑप्शन में 2019 नहीं गिवन है तो इसका मतलब उस टाइम पे कौन सा आंसर होगा? अगर आपके पास पेपर में आता है और अगर उसमें 2019 ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम आप कौन सी को आंसर टिक करोगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन है 1986 को,
क्योंकि उससे पहले कौन सा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट हमारा है, द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर द राइट। कौन से राइट के अकॉर्डिंग? राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। मिसप्रिंट हो गया थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सॉरी। व्हाट इज द राइट आंसर? अब आपको पता ही चल ही गया होगा किस, राइट टू सीक रिड्रेसल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following are the ways and means of consumer protection? Self regulation by the business, business association, government, all of the above. Third, right answer is the all of the above. Next, dash is the standardized mark on jewelry. ज्वेलरी पे जो मार्क होता है वो स्टैंडर्डाइज है, आईसीआई, एफपीओ, हॉलमार्क, सीईआरसी। हॉलमार्क होता है ज्वेलरी पे, आईसीआईसी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, एफपीओ फूड आइटम्स पे। इस पे फूड आइटम्स पे। अब आप लोग कमेंट में बताओगे जो सीईआरसी है उसका फुल फॉर्म क्या है और ये कौन से आइटम्स पे हॉलमार्क का या स्टैंडर्डाइज मार्क होता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉलमार्क। नेक्स्ट, डैश आर मेड टू हियर कंप्लेंट ऑन द वैल्यू ऑफ लेस देन 5 लाख। अगर 5 लाख से वैल्यू कम है तो उसकी कंप्लेंट की जो सुनवाई होगी वो कहाँ होगी? कंज्यूमर फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कंज्यूमर फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं कर रही है? कंज्यूमर वॉइस, कंज्यूमर फोरम, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कंज्यूमर यूटिलिटी ट्रस्ट सोसाइटी। इसका आप आंसर कमेंट में बताओगे, ये आपका होमवर्क है कि इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने में काम नहीं करती। कंज्यूमर वॉइस, कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर यूटिलिटी ट्रस्ट सोसाइटी एंड द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। द राइट आंसर इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, a consumer relating to which among the following can forwarded either in writing or in electronic mode to any one of authorities, namely district collector or the commissioner of regional office or the central authority, violating of consumer rights, unfair trade practices, false or misleading advertisement, or all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। क्या है राइट आंसर इसका? ऑल ऑफ द अबव। क्या है इसका राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। अगर ये सब चीज होते दिखती है तो कंज्यूमर किसी को भी राइटिंग में और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इमूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स, सेलेक्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। आंसर इज द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, क्योंकि इमूवेबल गुड्स पे कंप्लेंट नहीं होती है। तो आंसर इज द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। हाउ मेनी राइट्स डज ए कंज्यूमर हैव अंडर द प्रोटेक्शन एक्ट? जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, उसमें कितने राइट्स मिले हुए हैं कंज्यूमर को? 6, 3, 5, 8। 6
इज द राइट आंसर। कंज्यूमर को कितने राइट मिले हुए हैं? 6 राइट्स मिले हुए हैं। अगर उसके साथ कोई कंप्लेंट मतलब कोई फ्रॉड हो जाता है तो ही कैन कंप्लेन। Next question. What is the maximum penalty that can be imposed by the central authority in the first instance if it is of the opinion that it is necessary to impose penalty in respect of such false or misleading advertisement by a manufacturer or an endorser? 5 lakh, 50 lakh, 1 lakh, 10 lakh। कितने तक की पेनल्टी वो लगा सकता है फर्स्ट में? फर्स्ट में वो कितने तक लगा सकता है? 10 लाख। कितने तक? 10 लाख। पहले वो कितने की पेनल्टी लगाएगा? 10 लाख की। नेक्स्ट, what is the maximum penalty that can be imposed by the central authority for every subsequent contravention in respect of such false and misleading advertisement by a manufacturer? और अगर वो दोबारा करता है ऐसा काम, अगर वो दोबारा ऐसा करता हुआ मिलता है तो कितने तक की पेनल्टी? एक बार में तो हम कितने तक की पेनल्टी लगेगी उस पर? 10 लाख की। दोबारा अगर वो करता हुआ मिलता है तो कितने तक की पेनल्टी लगेगी? 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। देन राइट आंसर इज द 50 लाख। अगर दोबारा वो करता हुआ मिलता है फॉल्स लीडिंग, क्या चीज मिलता है, तो कितने तक की पेनल्टी लगेगी उसको? 50 लाख तक की। नेक्स्ट, सेंट्रल अथॉरिटी डीम्स इट इज नेसेसरी, इट may by order prohibited the endorser or of a false misleading advertisement for the making endorsement of any product or services for period which may extend it to 1 year, 6 months, 2 year, 5 year. The right answer is the 1 year. Central authority may prohibit the endorser of false or misleading advertisement on the every subsequent contravention for the period which may extend. उसके बाद वो कितने तक का? 3 years तक। अगर वो मिसलीडिंग क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता है, तो पहले कितने साल तक उसको पाबंदी लगाई जाएगी? 1 ईयर तक। अगर दोबारा वो करता हुआ मिलता है तो कितने साल तक वो पाबंदी लगाई जाएगी इस पे? 3 इयर्स तक। और फाइन कितना लगेगा पेनल्टी? पहले 10 lakhs और उसके बाद 50 lakhs। When the seller manipulates the price, it is known as unfair trade practice, restricted trade practice, manipulated trade practice, और या all of the above। अब क्या करेंगे ना, कुछ लोग ऑल ऑफ द अबाउ देख करके ऑल ऑफ द अबाउ पे आंसर पे क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। लेकिन आंसर इज द रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। अगर जो सेलर है वो मैनिपुलेट्स करता है किसको? प्राइसेस को। द provisions of which of the following will apply relating to search and seizure under the Consumer Protection Act 2019? Code of क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पेनल कोड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1916 या 2019? नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर क्या होगा इसका? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। नेक्स्ट, एवरी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड और आर्टिकल सीज्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शुड बी रिटर्न विद इन। जो सीज की हुई है डॉक्यूमेंट्स वो कितने दिन में रिटर्न कर दी जाती है? 1 week, 1 month, 20 days, 10 days? Answer is the 20 days. A person agreed by an order passed the central authority under the section 20 and 21 may file an appeal to the National Commission within period of days from the date of receipt of such order। अगर वो उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता है तब वो नेशनल जो कमीशन है उसमें कब तक फाइल कर सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 एंड 21। 45 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 20 डेज? आंसर इज द 20 डेज में वो क्या कर सकता है? फाइल कर सकता है। कहां पे? नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नेशनल कमीशन। जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट है
मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है? आंसर इज द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इस्टेब्लिश की जाती है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट इफ it is deemed fit established more than one district commission in district. True or false? True, false, one, only one district commission can be established in district, none of the above। मतलब कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं? द राइट आंसर इज द ट्रू। एक से ज्यादा भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसा कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन एक डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव जुडिशन टू एंटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डू नॉट एक्सीड 25 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 50 लाख। आंसर इज द अप टू 1 करोड़। कहा देखी जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। और 1 करोड़ से 10 करोड़ स्टेट में, और अबाउट 10 करोड़ नेशनल में। और उसके बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो कहा देखी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल डिसाइड द एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ कंप्लेंट विद इन 30 days, 7 days, 21 days, 45 days। आंसर इज द 21 days। डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होगा? कंप्लेंट